بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل قرآن کا 73rd سورہ، نزول کے حساب سے یہ تیسرا سورہ ہے۔ Oh you wrapped in your clothes، یہ سب سے پہلی ورس ہے سورت کی، and this is such a beautiful سورت، and اس کی پہلی ہی ورس میں اللہ تعالیٰ نے پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے طریقے سے پکارا ہے۔ اس کا مطلب ہے Oh you wrapped in your clothes، someone who's wrapped in a garment۔ اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ اکثر اپنے اوپر ایک گارمنٹ ڈال لیتے تھے جس سے وہ اپنے آپ کو کور کر لیتے تھے، یا تو وہ ان کا روپ ہوتا تھا یا وہ ایک میٹریس ہوتا تھا جس سے وہ اپنی بیک سے لے کے اکثر اپنا فیس بھی کور کر لیتے تھے۔ سو دس از این ایکسپریشن آف لو تھرو وچ اللہ تعالیٰ از کالنگ پروفٹ پیس بی اپون ہم wrapped in a beautiful garment۔ Stand all night in prayer except a little، pray half the night or a little less۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ straight into action پروفٹ پیس بی اپون ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ رات کی عبادت کرو، pray half the night or a little less۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پروفٹ پیس بی اپون ہم کو یہ آپشن دے رہے ہیں کہ زیادہ پڑھو، پوری رات پڑھو یا تھوڑی کم پڑھو۔ Why does اللہ تعالیٰ want Prophet peace be upon him to pray so much؟ اللہ تعالیٰ یہ کیوں حکم کر رہے ہیں کتنا پڑھو؟ اس کا مطلب یہ ہے that اللہ تعالیٰ loves prayer and اللہ تعالیٰ wants his servants to pray۔ ان شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں and اللہ تعالیٰ یہ حکم کر رہے ہیں کہ رات کی عبادت کرو، اسپیشلی Prophet peace be upon him کو اس وجہ سے کیونکہ اس ٹائم قریش جو تھے وہ Prophet peace be upon him کو بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دے رہے تھے، اور دن کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جو کہ آگے سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ دن کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں and you have endless duties to perform۔ اس وقت آپ کو یہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی فوکس اور اتنے کنسنٹریشن سے عبادت کر سکیں جتنا ان کمپیریزن آپ رات کو اکیلے ہو کر کر سکتے ہیں when the entire world is sleeping and there is nobody around to distract you or any worldly affairs that can disrupt your namaz۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا پرپس ہے that he wants Prophet peace be upon him to talk to him one to one، ایک conversation کیری کریں۔ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس یہ تھا کہ اس وقت جو پروفٹ پیس بی اپون ہم کو ساری ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی تھی قریش کی طرف سے، کیونکہ دن کا ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ وہ باہر جاتے تھے تو ان کو بہت طریقے کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ قریش وہ ایکسٹریملی اگینسٹ پروفٹ پیس بی اپون ہم اینڈ وہ ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے جس میں وہ ان کو تنگ کر سکیں یا ان کا مذاق اڑا سکیں۔ اینڈ نوئنگ دا فیکٹ دیٹ پروفٹ پیس بی اپون ہم ہیڈ سچ اے ڈیسنٹ اپ برنگنگ، ان کے لیے ایسی باتیں سننا کتنی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ پروفٹ پیس بی اپون ہم had never conversed with somebody in an indecent way or used any sort of wrong word for anyone in his entire life, even before prophethood۔ تو ان کے لیے ایسی تکلیف دہ باتیں سننا بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا۔ That was one reason that اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ Prophet peace be upon him ان سے رات کو بات کریں، ان کے ساتھ ایک conversation hold کریں، a beautiful conversation that is just between the creator and his creation۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اچھے سے پتا تھا کہ اگلے دن Prophet peace be upon him کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے قریش جو ہیں ٹریٹ کریں گے انہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ wanted to gear up Prophet peace be upon him, giving him that soulful time at the night time so that he can talk to him, he can prepare him for the next day۔ So once you have this beautiful conversation with your creator, you are ready to face the world and you're ready to face that ugly conversation that you're going to have the next day۔ We will soon send upon you a weighty revelation۔ اللہ تعالیٰ آگے جا کے پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اوپر اور قرآنی آیات جو ہیں ریویل کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کو پریپیئر کر رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے۔ Indeed, worship in the night is more impactful and suitable for recitation, for during the day you're overoccupied with worldly duties। Always remember the name of your Lord and devote yourself to him wholeheartedly۔ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور ان کے ذکر میں اپنے آپ کو رات بھر مصروف رکھیں۔ He is the Lord of the East and the West۔ There is no God worthy of worship except him, so take him alone as a trustee of affairs۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جتنی ورس بیان کی ہیں اس میں فرسٹ آف آل تہجد کی نماز کو ایک اوبلیگیٹری نمازوں میں سے ایک بنایا ہے۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کیا کنکلوڈ ہوا۔
और सेकंड ये कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को थ्रू आउट द नाइट अल्लाह ताला प्रिपेयर करना चाहते थे ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए उन सारे चैलेंजेस को फेस कर सकें। एंड सेकेंडली अल्लाह ताला इसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ दावा भी बता रहे हैं दैट यू नो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू मेक पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स इस्लाम। सिमिलरली आज के ज़माने में भी जब आप दूसरे लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं या उनको इनवाइट करते हैं, दावा सिंपली मीन्स टू इनवाइट और गिव अ कॉल to somebody towards Islam, towards your deen। तो ये बात इसलिए भी यहाँ पे सेंस बनती है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के थ्रू उनको भी समझाया और हमें भी दैट इस्लाम की दावा देने के लिए एक इंसान को, एक मोमिन को पहले अपना दीन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपना रिलेशनशिप अल्लाह ताला से इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए दैट नो मैटर जितनी भी आउटसाइड वर्ल्डली फोर्सेस हों, वो आपको जितना भी बुरा भला या आपको जितना भी चैलेंज करें, आपको तंग करें, आपका मजाक उड़ाएं, आप उस चीज़ से लेट डाउन ना हो। So that you know that your God is there, Allah Ta'ala is there and He's seeing everything. You have such a strong relationship with Him that no other force can break that. और कोई भी चीज़ आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकती इस्लाम को फैलाने के लिए। Be patient, O Prophet, with what they say and depart from them courteously. यहाँ पे अल्लाह ताला हुक्म कर रहे हैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कि वो सब्र दिखाएं उन लोगों के साथ जो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही बुरे तरीके से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ट्रीट कर रहे हैं। एंड डिपार्ट फ्रॉम देम कर्टियसली, उनसे बहुत ही पोलाइटली मैनर में डिपार्ट करें, मतलब उनसे आप दूर हो जाएं, डिटैच हो जाएं, बट इन अ पोलाइट एंड कर्टियस मैनर। और ये बात हम मुसलमानों के लिए भी है कि अगर आज के ज़माने में हम किसी को इस्लाम की तरफ लाएं और उसका रिस्पॉन्स हमें हार्शली मिले, इवन देन वी शुड टॉक टू देम इन अ नाइस पोलाइट मैनर एंड शुड नॉट एंगेज आवरसेल्फ इनटू एनी फिल्दी कॉन्वर्सेशन विद देम। इस सूरह को हम लोग अगर नॉर्मल एक ले मैन के पर्सपेक्टिव से देखें जिसने कभी ज़िंदगी में कुरान पढ़ा ना हो और वो ये पढ़े तो उसको किस तरह से समझ आए या वो क्या समझे इस बात से, हिस्ट्री के हिसाब से तो हम लोग के सामने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके हमें बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला ने रसूल को मुखातिब किया इस सूरह के स्टार्ट में कि चादर में लिपटे हुए रात को उठा करो मगर ज़रा कम। अब ये बात एक नॉर्मल इंसान को क्या समझ आएगी कि रात में उठा करो ज़रा कम। हम लोग आजकल की लाइफ स्टाइल में, आजकल की इन चीज़ों में इतना डिफरेंट तरीके से लाइफ को हम लोगों ने, यहाँ पे अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं बता रहा है, यहाँ पे अल्लाह ताला पॉइंट कर रहा है कि हाउ इज कैजुअल एंड हाउ डिसिप्लिन्ड यू शुड बी। इट्स नॉट जस्ट कि इस पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से देखें कि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, तो ये बात सामने आती है कि रात को उठो मगर ज़रा कम, आधी रात या उससे भी कम, कुछ कम कर दो। अब ये टाइम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे अल्लाह की, रात को जाग के इबादत करते थे, क्योंकि दोपहर में वो तबलीग करते थे, उस टाइम पे लोगों को गाइड करना तो वो एक बड़ा टायरिंग प्रोसेस होता है, किसी को किसी चीज़ पे गाइड करना है, किसी को सीधे रास्ते के बारे में बताना, और दूसरा इंसान जो अगली तरफ जिनको समझाया जा रहा है, जिनको इल्म ही नहीं है उस चीज़ का, और वो आपको दीवाना समझते हैं और आपकी बातों को सुनते ही नहीं और उनसे उनका मजाक बनाते हैं। तो ये एक बड़ा टायरिंग प्रोसेस है। जब इंसान थक हार जाता है तो वो इन दी एंड आके अल्लाह के आगे ही गिरता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आगे इबादत करते थे, अल्लाह की सामने अपनी सारी उदासी शेयर करते थे। अल्लाह ताला ने उनको जब ये देखा और इस तरह से, तो उनको अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से पुकारा और बताया कि रात को उठो मगर ज़रा कम, आधी रात या उससे भी कुछ कम, या कुछ ज़्यादा कर दो और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। अब उस वक्त कुरान कितना नाजिल हुआ और कुरान कितना नाजिल हो चुका हुआ था, उस हिसाब से देखें कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्यों मेंशन करेंगे कुरान को ठहर ठहर के बाकायदा पढ़ो, बाकायदा पढ़ो। देखें कुरान अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है उसमें दुनिया और आखिरत, और दुनिया जब से बनी है और जब तक रहेगी तब तक की सारे इल्म अल्लाह ताला ने कुरान में दे दिए। अल्लाह ताला इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि कुरान को ठहर ठहर के बाकायदगी से पढ़ो। बाकायदगी से मतलब रेगुलरली। देन अगेन यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने स्केजुअल या डिसिप्लिन सामने ला के रखा कि रेगुलर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग। और ठहर ठहर के पढ़ो, दैट मीन्स के नॉट जस्ट ठहर ठहर के रुक रुक के पढ़ो, उसको समझ के, ठहर के, उसको माइंड ठहरा के हाँ उसको समझने के इंटेंशन से पढ़ो। आजकल हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कुरान रटाने की वो होती है कि हिफ्स कर लिया जाए। हाँ, हिफ्स करना है इज़ गुड, लेकिन हमारे यहाँ किसी बच्चे को मतलब और उसके हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एक
बेसिक पहलू पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि रियल लाइफ और लाइफ में उसको वो इम्पैक्ट किस तरह से करेगा, चेंज कैसे लाएगा। कुरान पढ़ के आप खुद बताएं कि कभी कुरान पढ़ के कभी ऐसा फील हुआ है कि चेंज आ रहा है लाइफ में। हालांकि हम लोग बचपन से अब तक कितनी दफ़ा कुरान पढ़ चुके हैं, कभी ऐसा। लेकिन कुरान जब चीज़ ऐसी है जो सबसे पावरफुल किताब है और उससे अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप समझें कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है इसको समझने में और इसको सही तरह से परसीव करने में। आगे बताते हैं, हम अनकरीब तुम्हारे ऊपर एक संगीन हुक्म नाजिल करेंगे। अल्लाह ताला ने पहले बोला या कुछ ज़्यादा कर दो या ठहर ठहर के बाकायदगी से पढ़ो, एक ये बात मेंशन की, फिर कहा कि रसूल हम तुम पे बहुत संगीन हुक्म नाजिल करने वाले हैं। ये थ्रू आउट शुरू से अब तक अल्लाह ताला ने एक उस रसूल को एक रूटीन बताई कि तुम इस रूटीन पे चलो, बिकॉज मैं तुम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाला हूँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोई भी काम, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं और उस काम की आपको प्रैक्टिस नहीं है, उस काम का आपकी लाइफ रूटीन में कोई पार्ट है ही नहीं, एकदम से आपको वो चीज़ करने को मिल जाए तो आप नहीं कर सकते। अगर आप एक्सरसाइज करते हो और आप बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल, और एकदम से आप जिम जाते हो या कोई एक्सरसाइज पूरी हैवी लगा लेते हो जैसे आप रूटीन में लगा रहे होते हो, तो क्या आपका जिस्म या आपकी बॉडी साथ देगी? नहीं। तो इसी तरह बॉडी को, माइंड को अल्लाह ताला प्रैक्टिस की बात करता है। जैसे कि हम लोगों ने सुनते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम लोगों को ये अल्लाह ताला ने बहुत पहले से, मतलब कितने टाइम पहले से ये सब चीज़ें हमें गाइड कर दी, हमें बता दिया कि किस तरह से चलना है, किस तरह से फॉलो करना है। रूटीन, स्केड्यूल, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू अकॉम्प्लिश समथिंग। अगर आपको कोई जिम्मेदारी या अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, तो अल्लाह ताला वहाँ पे रसूल को बता रहे हैं कि मैं तुम पे बहुत संगीन हुक्म नाजिल करने वाला हूँ। बेशक रात का उठना नफ्स की पामाली के लिए बेहतरीन ज़रिया और ज़िक्र का बेहतरीन वक्त है। अब रात के वक्त की इबादत और रात के वक्त का ज़िक्र वो बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? इस बारे में भी सोचें कि रात एक सुकून का टाइम होता है। रात एक इंसान जब लेटता है थक हार के और उस थक हारने के बाद किसी चीज़ के लिए उठता है, तो वो कोई चीज़ छोटी नहीं हो सकती। तो अगर अल्लाह की इबादत के लिए इंसान उठ रहा है तो वो कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। और नफ्स जो कि इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ में, जो इंसान को सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम देता है, वो इंसान का नफ्स है। तो इस नफ्स को मारने के लिए या इस नफ्स को संभालने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम अल्लाह के ज़िक्र का या इबादत का अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो रात का टाइम है, जो बहुत बेहतरीन टाइम है। और इसी टाइम पे नमाज शब जो हम लोग पढ़ते हैं वो उसका टाइम है, जो हमारे लिए, हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए, हर मुश्किल से आसानी के लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि यकीनन आपके लिए दिन में बहुत मशगूलियात हैं। अब ये सिर्फ अल्लाह ताला एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि हाँ आप दिन में बहुत मसरूफ़ होते हैं या वो। अगर हम लोग अपने हिसाब से देखे जाएं तो ये थ्रू आउट शुरू से आखिर तक एक रूटीन अल्लाह ताला बता रहा है कि रात के टाइम में इबादत और सोना है तुम्हारे लिए, और दिन के टाइम में तुम्हें कमाना और अल्लाह की राह में निकलना है। और फिर आप अपने रब के नाम का जिक्र करें और उसी के हो रहें। मतलब इस रूटीन को इसी तरह से लेके चलते रहें अपनी लाइफ में, और यही सबसे बेहतरीन तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। वो मशरिक़ व मग़रिब का मालिक है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा आप उसी को अपना निगरान बनाएं। मतलब अल्लाह ताला के अलावा 100% कोई इस दुनिया को ना चलाने वाला है, ना इस दुनिया का रखवाला है। वही एक निगरान है और उसको ही आप अपना निगरान बनाएं। मतलब अल्लाह ताला ये बातें करने के बाद इस तरह से क्यों मेंशन कर रहा है कि आप उसकी बातों को, एक इंसान क्रेडिबिलिटी पता होती है इंसान की, तो उसकी बातें मानी जाती हैं। तो जब ये इंसान लोगों के, जब ये कुरान लोगों के आगे आया और लोगों ने इसको पढ़ा और इस तरह की चीज़ें लोगों ने पहली दफ़ा पढ़ी तो और सुनी, तो उनके लिए ये बड़ा अमेजिंग चीज़ थी कि कैसे ये ऐसे कोई कुछ लिख सकता है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मेंशन की कि इंसान इसको उस तरीके से समझ सके जो उसकी हिदायत का ज़रिया बन सके। सिर्फ़ इबादत और सिर्फ़ अल्लाह ताला की नमाज और रोज़े और ज़कात वग़ैरह से सिर्फ ये हम पे वाजिब नहीं है। बहुत सारे हुक्म और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उसके अलावा भी दी हैं, तो वो भी हमें देखनी होती हैं। और ये लोग कुछ भी कह रहे हैं इस पर सब्र करें और उन्हें खूबसूरती के साथ। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने मेंशन की है कि लोग, नफ्स, जो भी चीज़ें हैं, ये कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी बोलता रहे आपका नफ्स, या जो लोग
جن سے آپ ڈیل کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح کی آپ کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں یا ان کسی بھی طرح سے آپ کی لائف کو انٹرپٹ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں آپ سے جڑے لوگ، تو ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے نفس کو اور ان لوگوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سائڈ کر دیں، ان سوچوں کو، ان تھاٹس کو جو آپ کے لیے نیگیٹیوٹی کا باعث بن رہی ہیں اور آپ کو حق کے رستے سے ہٹا رہی ہیں۔